لاہور سے ایک دوست کا سوال ہے کہ کہتے ہیں ہر تحریر جماعت اور آپ کا اذان قبل ہر تحریر جماعت اور آپ کے خطبات یا سوال و جواب کی محافل میں یہ بات سنی ہے کہ امت محمدیہ میں نبی کا نام صرف مسیح موعود کے لیے ہی مخصوص ہے. باقی علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح تو کہا گیا مگر نبی کا نام کسی کو نہیں دیا. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب رسالہ الوصیت صفحہ 13 کی فوٹو کاپی بھی ساتھ بھیجی ہے. حضور نے تحریر فرمایا ہے پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا. اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ بھی بعض امتی اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی کا خطاب دیا. میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اس لیے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حوالے ہیں وہ الگ الگ حوالے ہیں، مختلف مضمون کی بات ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر، اور ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ تضاد نہیں ہے آپس میں، بلکہ جس صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو وہ وہاں درست بنتی ہے، دوسری صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے وہاں وہی درست بنتی ہے، اور آپس میں کوئی ان کا تضاد بھی نہیں ہے. اول تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے ان کے سوال سے کہ گویا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کی ہے. یہ درست نہیں ہے. جو الفاظ میں نے کہے میں نہیں ہوئے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے میں پڑھ کے سناؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا صورتحال سمجھا دوں کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے. بہت سے نادانوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کلام میں تضاد کے جو الزامات لگائے ہیں وہ تو دشمنی کی وجہ سے لگائے ہیں، مگر بعض مخلص احمدی بھی اپنے علم کی محدود علم ہونے کی وجہ سے یا بعض باتوں کی توفیق نہیں ملتی کسی کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف مواقع پہ جو مختلف کلام ہیں ان پر زیادہ گہرا غور نہیں کر سکے، اور ان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. بعض دفعہ ایمان کو نقصان نہیں کرتی مگر طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ ارے نہیں کیفیہ تحیی الموتیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایمان نہیں لاتا. انہوں نے کہا ہاں ایمان تو ہے لیکن تطمئن قلبی تاکہ میرا دل جو ہے اطمینان پکڑ جائے. تو ان کی بے چینی بھی ایمان کو نقصان نہیں کرتی، دل میں ایک قسم کی بے چینی اور بے اطمینانی سی پائی جاتی ہے. ان کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو لفظوں کا انتخاب ہے یہ بہت گہری فراست کے ساتھ کیا گیا ہے. اس کو نظر انداز کرتے ہی بعض مشکلات دکھائی دیتی ہیں. مثلا حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات، اور اپنے لیے فرمایا میرے لاکھوں نشانات ہیں، تو وہاں غیر عملی مولوی ادرائے شرارت یہ لفظ کا فرق بیان کیے بغیر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف 3000 معجزات تھے اور آپ کے گویا لاکھوں معجزات ہیں. تو لفظ بدل کے اس میں تحریف کر کے پھر اعتراض بناتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تمام نشانات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرار دیا ہے. تو جس کے لاکھوں نشانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہوں تو آپ کے معجزات میں پھر کتنے لاتعداد نشانات ہوں گے. یہ مضمون وہ عملاً سمجھنا نہیں چاہتے، شرارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں. مگر احمدیوں کو جہاں تک تعلق ہے جو ایمان رکھنے والے خدا کے فضل سے ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں، ان کی عقل پر کوئی شک نہیں، مگر ایک طبی بات ہے بعض دفعہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے لفظوں پہ غور کی کمی کی وجہ سے. اب جہاں حضرت رسول مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات فرمائی جس کی جو عبارت آپ نے میرے سامنے رکھی ہے
कौन सी इबारत ये है। ये उनकी बात। बस इस तरह पर बाज अफराद ने बावजूद उम्मती होने के नबी होने का खिताब पाया। ये खिताब किससे पाया, किस तरफ इशारा है? जब तक आप इस मसले को हल नहीं करेंगे इस इबारत का मफहूम समझ नहीं आएगी। एक तो ये कि बहुत बाज जहां तक मुझे याद पड़ता है बहुत से बुजुर्गों के इल्हाम में लफ्ज नबी इस्तेमाल हुआ है और उसका उन्होंने इसके साथ जैसा कि हक था तर्जुमा यही किया है कि ये हम मुखातिब नजर आते हैं मगर नबी के माना नबी नहीं। लेकिन ये मेरा तासुर है, इसके मुताबिक मुझे कतई हवाला इस वक्त याद नहीं। लेकिन जो खिताब पाया का कतई हवाला है वो कुरान करीम की वही आयत है जिससे मैं इस्तेदलाल किया करता हूँ। वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन। यहाँ एक अमूमी नबूवत का परतौ है जिसका जिक्र फरमाया गया है जो अतात से मिलता है। बस खिताब तो मिल गया किसी पहलू से, उस खिताब के क्या माने हैं जब उसको आप हदीस नबी की रोशनी में सुनेंगे तो खिताब होते हुए भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ये दावा कि मैं एक ही चुना गया हूँ नबी कहलाने के लिए, नबी का नाम पाने के लिए, मुतज़ाद नहीं बल्कि अपने अपने महल पर भी कुछ दुरुस्त ठहरता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कसरत से ऐसे लोग पैदा होंगे, ये पेशगोई थी, जो अतात में ये इस दर्जा कमाल को पहुंचेंगे कि वो नबी कहलाने के मुस्तहिक हो जाएंगे। मगर नबूवत का मयार बुलंद हो चुका है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस किस्म की नबूवत की ज़रूरत है, क्योंकि वो उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकेंगे इसलिए खुदा ताला उनको नबी के मनसब पर फायज नहीं फरमाएगा। ये मुराद है उस हदीस से जिसमें फरमाया गया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। मेरे नज़दीक उमन युतिल्लाह ही की तशरीह है जो इस हदीस में मिलती है। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। ये क्यों फरमा दिया कि उलमा उम्मती अंबिया, आयत से तो बुझा ही नजर आता है, लेकिन आपने फरमाया का अंबिया बनी इसराइल। अब अंबिया बनी इसराइल क्या थे? नबी तो थे मगर महदूद इलाकों के लिए, महदूद वक्तों के लिए, और इस कसरत से अंबिया बनी इसराइल मुख्तलिफ जगहों पर पैदा हुए हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा भी पैदा हुए हैं कि उनका मर्तबा अगर आप देखें तो उम्मत मोहम्मदिया के बुजुर्ग उलमा से किसी तरह भी ज्यादा दिखाई नहीं देता। बस मयूतहिल्ला का मतलब ये बनेगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से एक नहीं कसरत से ऐसे नबी पैदा हुए या हो सकते हैं जैसे बनी इसराइल के नबी थे। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के पेश नज़र लफ्ज़ का से उनके दरमियान और नबूवत के दरमियान एक पर्दा रख दिया ताकि उनमें से हर एक ना नबूवत का दावेदार हो, ना एक नया दौर शुरू हो हर ऐसे नबी के आने पर, जिसके बाद फिर एक गैर मामूली तौर पर तमीज़ का दौर शुरू हो जाता है, सच्चे और झूठे की पहचान का वाज़ेह दौर शुरू हो जाता है। तो ये हिकमतें हैं मेरे नज़दीक जिसकी वजह से खिताब तो मिला है उनको, खिताब से इनकार नहीं है। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ खिताब ही इस्तेमाल फरमाया। खिताब मिला मगर किन मानों में? का अंबिया बनी इसराइल के मानों में। खिताब अल्लाह से मिला कुरान करीम में, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिला उसकी तशरीह में, लेकिन किस तरह? का अंबिया बनी इसराइल। जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि मसीह मऊद की हदीस का हवाला देकर कि तमाम उम्मत में नबी का नाम पाने के लिए मैं अकेला मुंतखब किया गया, इसमें कतन कोई शक नहीं, ये उससे मुतजाद नहीं, क्योंकि वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
का मसीह इब्न मरियम नहीं फरमाया, वहां काफ का पर्दा उठा दिया है बीच से, और बैन ही नबी का नाम दिया। एक मुस्लिम की हदीस में 4 मरतबा हजरत मसीह इब्न मरियम को, जिन्होंने मुस्तकबिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के लिहाज से नाजिल होना था, वो उनको नबी का नाम दिया गया। उसके अलावा किसी को किसी हदीस में कहीं भी बगैर काफ के पर्दे के नबी का नाम नहीं दिया गया। अगर इन साहब को कहीं दिखाई देता है तो मुझे बताएं, ताकि मैं अपने मसलक पर उसकी रोशनी में नजरसानी करूँ अगर जरूरत हो तो। बस ये तजादात नहीं है, ये मुख्तलिफ महल की बातें हैं। उनके दायरे में जब आप बात को अच्छी तरह समझें और मसीह अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों के इंतखाब पर गौर करें तो फिर बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। बस वो बात जो मैंने कही हरगिज़ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ के मुनाफी नहीं, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ में जैसा कि लाहौरी जमात कहती है कि गोया तज़ाद पैदा हो जाता है अगर हम नबी मान लें, वो भी गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जहाँ नबूवत का इनकार किया है वहाँ और मानों में किया है, जहाँ इकरार किया है वहाँ और मानों में किया है, और उन मानों को खोल दिया है, कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। मगर इस बात का कभी इनकार नहीं फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया में मसीह मौत की हैसियत से नबी का नाम पाने वाला, नबी का लक़ब पाने वाला मैं एक ही मुंतखब किया गया। अगर कोई कहता है कि कोई और है तो दिखाए। यहां तक कि एक और हदीस में भी सिर्फ एक जगह नहीं फरमाया, मसीह का जिक्र फरमाते हुए जिसने मुस्तकबिल में नाजिल होना था, फरमाया लैसा बैनी व बैनहु नबी, कि मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं। बादी की तशरीह भी फरमा दी और ये भी बता दिया कि वो जरूर नबी होगा। तो उसको तो का नबी नहीं फरमाया, नबी फरमाया है। तो जो खिताब दिया गया है वो कुरान करीम में दिया गया, जिसकी तशरीह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि नबी का खिताब उन मानों में है जिन मानों में बनी इसराइल के नबी हुआ करते थे। मगर मेरी उम्मत में नबी का नाम पाने वाला वही होगा जो कामिलन मेरे मुताबिक होगा, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला उसको एक मनसब पर मामूर फरमाएगा, और वो मनसब मसीहियत है, या दूसरे लफ्जों में मनसब महदवियत है। समझ गए? जी ठीक है, आप तो समझ गए, इलाके लोग साहब भी समझ गए हैं। ये हवाला भी है इसका, हवाला जो हकीकतुल वही वाला, अगरचे इस उम्मत के हकीकतुल वही का हवाला है। उम्मत के बाद अफराद मुकालमा और मुखातबा इलाहिया से मखसूस हैं और क़यामत तक मखसूस रहेंगे, लेकिन जिस शख्स को बकसरत उस मुकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ किया जाए और बकसरत उमूर गैबिया उस पर ज़ाहिर किए जाएं, वो नबी कहलाता है। ये कसरत के साथ जिसको मुखातब किया वो नबी कहलाता है, ये तो एक आम तारीफ है। अब वाज़ेह हो कि अहादीस नबविय्या में ये पेशगोई की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा जो ईसा और इब्न मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मासूम किया जाएगा। ये वो नाम है जिसका मैं कहा करता था कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के सिवा ये नाम बैन ही बगैर किसी बीच के पर्दे के उम्मत में किसी को नहीं दिया गया। और अगर ये बात गलत है तो दिखाइए।